Ready? Yeah, so today we're going to start with frames. We are using force method for the analysis of frames. So we are starting with an example of it's a portal frame, which means that it's a 90-degree angle connection between beam and column. Okay, and beam is a straight member, so we call it portal frame. Okay. Okay, and it is subjected to a uniformly distributed load W on the beam. Okay, and the height of the frame, which is the height of the column, is h, and the span of the beam is L, and the moments of inertia of both columns are assumed to be same, I1 and I2, and for the beam it is, we have called the moment of inertia as I2. And normally the moment of inertia of beams and frames are different, so we have to give them two different symbols, I1 and I2. I1 for column, I2 for the beam. Okay, so we've just given a few names, A, B, C, D. The other important feature of this frame is that the bottom of the columns are pinned. Okay, both are pinned at the bottom, both columns. Okay, the other possibility would have been fixed uh, supports at the column, which will make it even more indeterminate. For now, it is indeterminate to the first degree because we have just one more extra, should I say, redundant force over here and redundant direction over here. Okay, so the primary structure that we are going to use is, okay, the same geometry. This is pinned. We are taking a pin, but we are going to consider this as a roller support, okay, in our primary structure. Okay, now this is determinate frame. Okay, so we will consider this frame subjected to the applied loading, which is UDL in this case, and we will separately consider we'll separately consider the redundant. Okay, so for now you can assume the redundant either this rightward or leftward, that doesn't matter. Final answer will be with the corresponding algebraic sign. We are assuming it this way, and we want to call this one as HD. Okay. So now, and we have to find for this frame at point D, we'll have to find delta D naught, which means the horizontal, the deflection at D due to the applied loading. Okay, and we are talking about horizontal. This is horizontal. You want to add an H to it, you can add, but I would say it is not really needed. Okay, so because vertical is still supported, which means the roller support will make sure the frame doesn't deflect downward or upward or downward in this case. So we are talking about this is delta D naught is horizontal displacement at D due to the applied loading. Okay, clear? And we need to find, so as you know, as our procedure, considering if this is equal to unity, then we would call this as delta DD. Okay, and the comparability equation would be delta D naught plus HD times delta DD equal to 0. Okay, delta D actual, which is 0. Sorry, this is delta DD. Better changes. I think it's confusing. Delta DD. Okay, I hope you're familiar with this delta DD. Deflection at D due to unit load at D. Okay, so now we can find out HD by finding these two displacements. Now this is a job, finding delta D naught
and finding this delta dt. You will see in the process that when you try to find delta d naught, when you have done the complete process for delta d naught, you would have done whatever is required for delta dd as well. Okay, you will see how it works. Now, we're finding, for this frame, we're going to find delta d naught horizontal displacement at d due to this loading. Okay, this is the problem now we're going to do. This is the first thing that we're going to find, delta d naught. Now, for this we have to use the method of virtual forces. So I will just redraw this over here. Okay, I'll just draw a line over here, which means I'll come back to this part once I'm done with finding delta d naught and delta dt. Okay, so for now I'm focusing on finding delta d naught. So this is the frame I'm dealing with. Okay, this is the applied loading. Of course, this is real loading. Both these are real loadings. I mean, this is real loading on the frame, and this is because you have to consider the reaction at D as well in your equation. So we are considering that same HD, which can be shown over here as well if you like. Okay, so both these are real forces. Okay, now nothing is virtual in this part. If you had direct formula for delta d naught and delta dt, you could just use those formula and plug the values and solve for HD as we've been doing for beams. But for frames, you have to use method of virtual forces, which means we need to deal with the problem by so we need to redraw this frame. Okay, and apply a unit value of, now this is important, this is the real loading, जिसकी वजह से आपने D पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, और this is the virtual load, virtual unit load. Okay, maybe I can clarify this. Now, if you remember, we discussed in our previous semester that this method of virtual forces, I can write it down for you, method of, sometimes known as method of unit loads, method of virtual forces. This method, so इसमें हमने करना क्या होता है, जहां डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, पहली बात है कि जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है उस पॉइंट पे एक यूनिट लोड अप्लाई करना है, यूनिट लोड, ठीक है, मसलन 1 किलो न्यूटन, 1 किलो, जो भी आप यूनिट्स में काम करें. फॉर नाउ विल जस्ट कॉल इट 1. ओके, सो दिस इज वर्चुअल. ये मैंने इस पॉइंट पे क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मैं ये जो पॉइंट D है इसी पॉइंट पे मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने यहां पे ये फाइंड D पे अप्लाई किया. मतलब इधर क्यों नहीं किया, इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट यहां फाइंड करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने यहां अप्लाई किया. नंबर 1. सेकेंड पॉइंट ये कि ओके, इस डायरेक्शन में मैंने वर्टिकल भी लगा सकता था, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकता था, किसी और डायरेक्शन में भी लगा सकता था कोई, तो मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि मैं यहां D पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया हुआ. बाकी यही रही ये बात कि मैंने इसको इस डायरेक्शन में क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, ये इस वक्त मुझे फ्रीडम है कि मैं इसको इधर शो करूं या इधर शो करूं, लेकिन मैं इसको इधर शो कर रहा हूं. ठीक, और नॉर्मली हम जो यहां पे चॉइस एक्सरसाइज कर लेते हैं HD के लिए, वही चॉइस हम इधर भी एक्सरसाइज करते हैं. हालांकि ये है डिफरेंट चीजें. वो एक रियल लोड है जो यहां आपने, दिस इज रिडंडेंट है, ये रिडंडेंट. ओके, और ये HD फोर्स है, वो एक यूनिट वर्चुअल फोर्स है जिसको आप कोई नाम देना चाहें तो दे दे, बट फिलहाल मैंने कोई नाम नहीं दिया ताकि कंफ्यूज ना हो आप इसको. ठीक है, डेल्टा P कहना चाहें, जो भी कहना चाहें.
ठीक है, getting it? वर्चुअल फोर्स ना। तो आपको ये बात समझ आई? जो मैंने रिडंडेंट के लिए चॉइस एक्सरसाइज की है, वही एक्सरसाइज चॉइस मैंने यहां पे रिपीट कर दी। इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती कैलकुलेशन में, और मैं आपको जब हम डेल्टा डी डी को फाइंड करने जाएंगे उसमें आसानी है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बस यहां से आप यूं समझ लें। अदरवाइज दूसरी ऑप्शन भी आप कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा डेल्टा डी डी के लिए दोबारा से आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हो गया ये? नाउ सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू डू? दोनों केसेस में आपने पूरे स्ट्रक्चर के पेरीमीटर को कवर करते हुए हर पार्ट के लिए मोमेंट की कोई ना कोई इक्वेशन लिखनी है। इसका मतलब पहले रिएक्शंस चाहिए होंगे, सिंपल। सो वी स्टार्ट विद दिस वन, और हम इन्हें इसके पहले रिएक्शंस लिख लेने। तो आप रिएक्शंस लिखें, इसके क्या रिएक्शंस होनी चाहिए आपके ख्याल में? WL/2 del WL/2 सिमेट्रिकल। ओके, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप चेक करके देख लें। ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल यहां पर रिएक्शन डेवलप हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल ये जीरो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लोड जो लग नहीं रहा तो फिर ये भी जीरो ना। सो मैं यहां पे लिख देता हूं रियल वर्चुअल, ताकि आपको याद रहे। अच्छा ना, रिएक्शंस लिख लिए, अब वो आपको मोमेंट के रिएक्शन मोमेंट की इक्वेशंस चाहिए। सो प्लीज राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर दिस पार्ट। क्या एक्सप्रेशन होगा? मैं मसलन यहां सेक्शन काटता हूं, ये मैंने ये चीज शो कर दी यहां पे, ठीक है, ये ए है नीचे वाला, और यहां पे मैं ये शो कर दूं तो यहां पे कोई मोमेंट डेवलप होगा? इट्स जस्ट एन एक्सियल फोर्स। ओके, सो दिस वन इज जीरो, ठीक है। ये वाला जीरो मोमेंट है यहां पे। इसका मतलब क्या होगा? जब मैं यहां पे आऊंगा तो जितना भी होगा ये, चले इसकी तरफ बाद में आते हैं। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? जीरो। व्हाट अबाउट दिस वन? कोई वैल्यू? ओके, सो लेट्स सी कि वो क्या वैल्यू है, ठीक है। सो बाकी फ्रेम का एनालिसिस आपको पता है, ठीक है। सो यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये चीजें आपको आ रही है। नॉर्मली अगर मैं इसको कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं इस कॉलम को, अगर कोई और भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो मैं क्या करूंगा? इस कॉलम को यहां पे यानी सेक्शन काट के, जस्ट कॉलम के अंदर सेक्शन काट के, बिफोर जस्ट बिलो दिस पॉइंट, और यहां पर जितनी भी फोर्सेस बनती हैं, ये सारी निकाल दूंगा, इंटरनल फोर्सेस इन द कॉलम जस्ट एट द टॉप। और फिर इस जॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये वाली फोर्सेस यहां पे रिएक्शन, ये वाली वही फोर्सेस विद डिफरेंट डायरेक्शन यहां पे शो कर दूंगा, और ये तीन यहां पे फाइंड कर दूंगा जॉइंट की, ये जॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम है। और फिर ये वाली जो फोर्सेस हैं वो मैं यहां सेक्शन काट के यहां पे जो भी, यानी मैं यहां जस्ट लिख देता हूं यहां पे, ये चीजें आ जाएंगी विद डिफरेंट साइंस रिवर्स्ड। और फिर ये जो बीम है, इसके इस एंड पे मुझे नोन होगी इंटरनल फोर्सेस। और अब जब मैं यहां पे आऊंगा तो मैं जहां सेक्शन काटना चाहूं काट सकता हूं। और अगर मैं इधर से जाऊं तो सेम प्रोसीजर जो मैंने यहां से किया, फॉर इंस्टेंस ये वाला कॉलम, इसका ये टॉप मैंने शो किया, ये बॉटम, ये आपको नॉन होगी फोर्सेस, ये वाली आप कैलकुलेट कर लेंगे तीनों, यहां पर सेक्शन काटते हैं ये वाला। फिर दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द जॉइंट, यहां पे यही वाली फोर्सेस साइन चेंज करके आ जाएंगी, और ये आप यहां से क्या, अगर आप डायरेक्टली जॉइंट पे कोई लोड लग रहा है उसको भी कंसीडर कर लें, ऐसे या ऐसे जो भी कोई लोड लग रहा है, और इसको ये वाली फोर्सेस आप फाइंड कर दें। फिर ये वाली फोर्सेस, ये जो सेक्शन यहां काटा होगा बीम का, ये जो एंड है यहां पर, ये वाला एंड, ये वाली फोर्सेस यहां पे डायरेक्शन चेंज करके आ जाएंगे। अब ये बीम के दोनों एंड्स पे आपको इंटरनल फोर्सेस नोन होंगी। इंटरनल फोर्सेस में इस केस में शियर फोर्स, और अगर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, और अगर एक्सियल भी है तो वो भी। अब आप इसकी मोमेंट इक्वेशन आराम से ले सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चूंकि हमें
सिमेट्री की वजह से पता है कि कॉलम के यहां पर भी टॉप के ऊपर कोई मोमेंट नहीं है और इधर से भी कोई लोड कोई मोमेंट डायरेक्टली कुछ नहीं लग रहा, तो लिहाजा मैं डायरेक्टली कॉलम को बीम को ऐसे लिख सकता हूं इस वक्त WL/2 WL/2 और ये इसके ऊपर यूरियल लग रहा है। अब आप कोई भी डिस्टेंस का पैरामीटर इधर से लेना चाहें चाहे इधर से लेना चाहें, जो आपको आसान लगता है, उसको x नाम देना चाहें x कह दें, 2 1 2 जो भी कोई नाम देना था वो भी नाम दे दें उसको, और यहां सेक्शन काट के इक्वेशन बना लें WL/2 एट डिस्टेंस x और ये यूरियल x डिस्टेंस तक, और ये अब आप शेयर फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर दें, लेकिन हम इस वक्त इंटरेस्टेड मोमेंट में ही है, ठीक, और ये मोमेंट की इक्वेशन बना लें। मैं कहूंगा आप इसको x2 बोल दें, 1 2 3 जो भी नाम देना चाहें इस बेस पे आप x2 बोल दें, इसको m2 बोल दें, ठीक है, नाम जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं इसका। सो m2 would be m2 as a function of x would be equal to WL/2 times x2 as a function of x2, sorry. Okay, what next? Minus WX2 square by 2. ठीक हो गया? और ये इक्वेशन x2 की 0 to L जो वैल्यूज हैं, ये L है डिस्टेंस, ठीक, वहां पे हमने शो किया हुआ बीम की लेंथ L है, तो इस पूरी लेंथ के लिए एक ही इक्वेशन, ठीक हो गया? सो नाउ we'll come to this part, the virtual part, find out the reactions, express moments in all three parts of the frame, and then start the integration. Okay, so what are the reactions in this case? अगर ये ऐसे अप्लाइड लोड 1 है तो यहां पर 1 डेवलप होगा रिएक्शन, ठीक है, और चूंकि ये एक ही लेवल के ऊपर है तो ये जस्ट एक दूसरे को किल कर रहे हैं, तो कोई मोमेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मोमेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पे कोई कपल नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है ये 0 वर्टिकल फ्रैक्शंस, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रही है फिर अभी कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट करने तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद मोमेंट की उसके बाद हमने लिखना है उसको इक्वेशंस लिखनी है। अब इसमें इस पार्ट में आप सेक्शन काटेंगे जब ऐसे ये 1 लग रहा है और यहां आप सेक्शन काट लें, ठीक है, तो मैं कंप्रेशन ऑन द आउटर फेस जस्ट इसके एज्यूम कर रहा हूं, वही एज्यूम करूंगा जो इधर एज्यूम कर रहा था डायरेक्शन पॉजिटिव, वही जो आप पहले फ्रेम में करते रहे, ठीक है। सो यू मे कॉल इट x1, या अगर आप इसको इस तरह कहना चाहिए, यहां आपने सेक्शन काटा है x1 और ये मोमेंट का नाम m1, सॉरी इसको नाम कुछ बुक्स में स्मॉल m1 कहा जाता है, कुछ बुक्स में जो भी सैंपल यूज करना चाहें उसमें मसलन डेल्टा m, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा डेल्टा m एज अ फंक्शन ऑफ x1। सो ये वैल्यू कितनी होगी, वन इंटू x1 बट प्लस या माइनस, माइनस। अगर ये उसी सेंस में मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्टीमेटली ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस दिस मोमेंट इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल दिस मोमेंट इज इक्वल टू -1, सॉरी 1 इंटू x1 और ये, सो दिस इज माइनस x1, आई होप यू गेट इट। Okay, so this x1 goes from 0 to h. All right. Similarly for this column, आप सेक्शन काटेंगे उसी तरह से, और ये फोर्स H1 है वर्चुअल अप्लाइड लोड, और ये मैंने अगेन बाहर की तरफ कंप्रेशन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, जो मोमेंट बाहर की तरफ कंप्रेशन प्रोड्यूस करे उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसीलिए ये जो हेड है ना एरो का वो बाहर की तरफ में शो कर रहा हूँ। So this is x3, maybe you could call it delta m as a function of x3 would be equal to, again
Similar calculations, minus x3, and this x3 goes from 0 to h. Clear? And what about the beam? Beam में क्या होगा? अगर मैं यहां सेक्शन काटूं, मैं क्विकली आपके सामने इसका एनालिसिस करता हूं। वैसे मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं, लेकिन आपके लिए, ताकि आप स्टेप्स को देख सकें कि बेसिक्स क्या स्टेप्स हैं। अगर मैं यहां सेक्शन काटूं इस कॉलम का, तो इस कॉलम के बॉटम पे एक ये फोर्स है, उसके अलावा बीच में कोई फोर्स नहीं है, हाइट ऑल अलोंग द हाइट, और यहां मुझे इंटरनल फोर्सेस फाइंड करनी होगी। तो वो मैं इंटरनल फोर्स ये और क्या शो करूंगा? मोमेंट। ये ऐसे लग रहा है, तो ये रिएक्शन में मोमेंट ऐसे बनेगा। ठीक, ये फोर्स की वैल्यू 1 और ये मोमेंट की वैल्यू 1 टाइम्स दिस डिस्टेंस विच इज h। Okay, so इस मोमेंट की वैल्यू h, न्यूमेरिकल वैल्यू h के बराबर होगी, क्योंकि 1 इंटू एच है ना। सो ये है टॉप के ऊपर, कॉलम के टॉप के ऊपर, अगर आपने सेक्शन यहां पे काटा, जस्ट बिलो द कनेक्शन पॉइंट। अब मैं फ्री बॉडी बनाता हूं इस जॉइंट की, यानी यहां पर भी सेक्शन काटूंगा, तो ये जो मैंने शो किया इस वक्त, ये वाला जॉइंट का ये एंड, ये वाला, ये चीज है जो मैंने यहां पे फोर्सेस शो की हुई है, उनकी डायरेक्शन उलट कर दूंगा। 1 इस डायरेक्शन में, तो मैं यहां पे ऐसे शो कर दूंगा, और h मोमेंट इस डायरेक्शन में है, मैं उसको ऐसे शो कर दूंगा। दिस इज द स्टेप्स, दीज द स्टेप्स यू नीड टू डू। मैं जिस बेसिक एक दफा आपके सामने कर रहा हूं। जॉइंट पे डायरेक्टली कोई फोर्स नहीं है, तो मैंने फोर्स वहां पे डायरेक्टली कोई शो नहीं, और अब यहां पे मैं इनके अपोजिट बस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एस्टैब्लिश कर दूंगा। इक्विलिब्रियम ये, और अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया? अब ये जो मैंने एंड पे इस जगह फोर्सेस शो कर दी, ये जब मैं बीम की एफबीटी बनाऊंगा, तो ये एंड बीम का ये वाला एंड है, तो इसी को उलट कर दूंगा। यानी दोबारा से मैं ड्रॉ करूं तो ये और ये 1 और h। बीम का जो एंड है ये वाला, वहां पर आप खुद भी समझ सकते हैं, वैसे मतलब खुद भी समझ से बता दें कि अगर मैं इसको यहां से एक लोड लगा रहा हूं, तो वही लोड ऊपर भी लग रहा है जो कि यहां पे नजर आ रहा है आपको, और प्लस में 1, आप देखें ये इधर अगर मैं लोड लगा रहा हूं, तो मैं बेसिकली ऐसे एक मोमेंट अप्लाई कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में ऐसे एक रोटेशन अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे ही है ना, और वही आपको यहां पर भी नजर आ रहा है h। लेकिन हमने सेक्शन काट काट के भी किए, तो वही आ रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली आप इस एंड पे भी इंटरेस्टेड है, फाइंड करना चाहे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी बीम को एक ही इक्वेशन से कवर कर सकते हैं। बीम पे है ही, लोड ही कोई नहीं है, तो मैं जहां जहां सेक्शन काटना है वहां उसको डिस्टेंस का नाम दे देता हूं x2, यहां पे इसको x2 कह रहा हूं, और मोमेंट की अपनी इक्वेशन लिख लेता हूं, वो भी आराम से लिखी जाएगी। कोई वो अब इस केस में कोई हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लोड नहीं है, कोई शेयर फोर्स यहां पे नहीं है, जीरो है, तो डिस्टेंस के चेंज होने से मोमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना। सो अब इस केस में जितना एंड मोमेंट है, वही एंड मोमेंट यहां पे, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, तो यहां ये लग रहा है, ये चीज मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज 1, दिस इज h मोमेंट, और ये x2 डिस्टेंस है। तो ये जो m, डेल्टा m एज अ फंक्शन ऑफ x2 होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? चलो मैग्नीट्यूड पहले बता दो, h, और कुछ है ही नहीं जो मोमेंट प्रोड्यूस कर सके, बस यही एंड मोमेंट ही आ जाएगा h। लेकिन साइन क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है, तो ये रिएक्शन में इसको डेवलप इसने असल में यही होना, लेकिन हमने बाय कन्वेंशन इसको सैगिंग शो किया हुआ, माइनस h फॉर x2 बिटवीन 0 एंड l। ठीक हो गया? सो नाउ दिस इज डेल्टा m एज अ फंक्शन ऑफ x1,
this is delta m as a function of x2 and this is delta m as a function of x3 और यहाँ पर हमारे पास m1 as a function of x was 0, similarly m3 as a function of x3 was 0 and this was our m2. Make sense? So now if you want to make a table, you can make a table, otherwise you can also do it without drawing a table. But let's make a quick table over here. So this is our segment. Let's say, see, this is A, B, C and D. Okay? So AB segment, distance parameter for AB was x1. Okay, limits were from 0 to h, and m as a function of x1 was equal to, we'll make, just enter the table, और फिर उसके बाद delta m virtual वाले से, this is for the real one and this is for the virtual one, x1. Okay, now I can just enter BC, CD. These are three segments, AB, BC and CD. Okay, that's it. That's it. So now you can see this is x2, this is x3. This limits goes from 0 to L, this is 0 to H. Now mx1 0, this is also 0. इन दो के लिए, sorry, ये हमने लिख लिया m1 and m3 are 0 और m2 की वैल्यू ये है WL by 2 x minus WX square by 2. ओके, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है. और डेल्टा m के केस में it is minus x1. ओके, यहाँ पे x2 साथ में डाल दें, उसके साथ बीम m2 वाले के साथ अगर आप डालना चाहें, minus x1, this is minus x3, and what about this, minus h. Okay, minus x1, minus x3 and minus h. Now you can just do the integration, I think. So please do the integration. Delta B naught is given by integral of, you know, m delta m over EI all over the frame. Okay, जब आप पार्ट्स में करेंगे तो इस जगह पर 0 आएगा. ये मैं जस्ट मल्टीप्लाई करके नहीं, इंटीग्रेशन करके कर रहा हूं. समझ आ रही ना इस बात की? यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है बेसिकली. इंटीग्रल m delta m over EI. Okay, so 0 and 0. So we are doing this for delta D naught. Okay, and then what next? For this part, can you do the math? Okay, integral of WL by 2 x2 minus WX2 square by 2 times minus h, okay, dx2 from 0 to L. So what you can do is you can just write it down, this minus h with each one of them. So it will be minus WL by 2 into h, integral of x2 from 0 to L
And then what next? Plus WH by 2 integral of x2 square dx2, okay, dx2 from 0 to L. And then you can quickly do this, minus WL by 2H into this will be simply L, okay, plus W H by 2 into L square by 3. यहाँ पर क्या आएगा? x2 का इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा? x2 स्क्वायर बाय 2, x2 स्क्वायर बाय 2. सो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे L स्क्वायर बाय 2 आना था यार यहाँ पे, और ये L क्यूब बाय 3 ऐसे ही होगा ना? सो यू जस्ट rewrite this down. W WL क्यूब हो जाएगा by 8. Yes, L by 2. No, it should be L square by 2 होना चाहिए ना, सिंपली 4 होगा. WL cube by 4 times H, okay, with a minus sign, plus WL cube times H by 12. इसको भी ओवरऑल क्यूब नहीं है, L क्यूब बाय 3 है बस, पूरे पे क्यूब नहीं है, L क्यूब बाय 3 है. 6 हो जाएगा फिर, हाँ 6 होगा, सॉरी 6 होगा. Okay, so you can do this math and see कि ये क्या आंसर्स बनेंगे. अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आप कुछ कॉमन ले सकते हैं बीच में से, ठीक है, बल्कि ये एड अप हो जाएंगे ना, ये तो सेम कोफिशिएंट्स हैं. सो माइनस 1/4 प्लस 1/6 कितना बनेगा? Can you just quickly confirm this? कितना आंसर आ रहा है? 1/12 प्लस या माइनस? माइनस. Okay, this seems to be right. So this is the answer for delta D naught. ये आपने फाइंड कर दिया. नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये पॉइंट है जो मैंने आपको बेसिकली बताना है. उसके बाद टाइम क्या हो गया? 12 बज गए, 5 मिनट है. नाउ प्लीज पे अटेंशन, हमने डेल्टा डी नॉट फाइंड करने के लिए, प्लीज पे अटेंशन, डेल्टा डी नॉट फाइंड करने के लिए क्या किया? जो रियल इसमें हमने यहाँ पे डी पे फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट, उसका नाम डेल्टा डी नॉट है, ऐसे ही है. और इसको फाइंड करने के लिए हमने एक वर्चुअल लोड का केस भी लिया जहां पर और कोई लोड नहीं था, सिर्फ इस डी पॉइंट पे ये एक हॉरिजॉन्टल लोड था, ऐसे ही था. और अगर आपको याद है तो हमने शुरू में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया वो ऐसे बनाया, मैं छोटा करके यहाँ पे बना रहा हूं. हमने ये कहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि ये गिवन था और हमने इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे बनाया. ठीक है, ये पहले भी हमने ये एच डी इक्वल टू 1 लिखा था यहाँ.
नाउ अगर हमने डेल्टा डी डी फाइंड करना है इस वाले को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमारा जैसे ये रियल था इस केस में, जब ये डेल्टा डी नॉट फाइंड कर रहे थे, इस केस में ये हमारा रियल स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ही है। तो मैं इसकी जगह पर, जो पहले डेल्टा डी नॉट की कैलकुलेशन है, इसकी जगह पर मैं सिंपली ये बना दूंगा। ऐसे ही है, ठीक है, समझ आ रही है? अब आपको रियल और वर्चुअल की लोड्स में कोई फर्क नजर आ रहा है? जी पूछे। अब मैं डेल्टा डी नॉट नहीं फाइंड कर रहा हूं, डेल्टा डी डी फाइंड कर रहा हूं, ये फाइंड कर रहा हूं, यानी फ्रेम में डी पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा हूं और लोड भी डी पे ही लग रहा है। डेल्टा डी डी का ये मतलब है ना, ये इसको फाइंड कर रहा हूं, यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर रहा हूं। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है। समझ लें कि आपने एक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को बुलाया, उसे कहा कि यार ये मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व करना है, तो वो आपको उसे पूछेगा आपकी ये आपको ये प्रॉब्लम आप उसको देंगे कि इसमें मुझे यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो ये आपका रियल लोडिंग है ना, दिस इज रियल नाउ, दिस इज रियल, ओके। जहां मैंने पहले ये बनाया था ना, ये वाली चीज, सॉरी यहां पे ये भूल गया मैं, अब उसकी जगह ये वाला बना दिया। और वर्चुअल भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको दोबारा से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, इस फार्मूले में ये जो इसको आप रियल कह रहे हैं, इसके वही आंसर्स निकलने जो वर्चुअल के निकलने। सो हम इसको सिंपली ये कर देते हैं when we are finding delta dd, okay, because for this case the real and virtual are the same things. ये इसलिए मैंने आपको कहा था, जिस मिनट मुझे आप लिख लेने, फिर सिर्फ सुन लें, फिर उसके बाद इस वजह से मैंने आपको कहा था कि जब आप डेल्टा डी नॉट फाइंड कर रहे थे, तो जहां पे यूडीएल लग रहा था और आपने यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी, तो यहां पर जब आप वर्चुअल के केस में, मैंने आपको कहा था यूनिट वर्चुअल लोड आप इधर एज्यूम कर लें, ठीक है, इधर एज्यूम कर दें, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रीयूज करना चाहें फॉर डेल्टा डी डी, देन यू बेटर एज्यूम इट सेम डायरेक्शन एज दिस एच डी, ताकि आपका रियल और वर्चुअल एग्जैक्ट अलोंग विद डायरेक्शन एक ही बन जाए। पता नहीं बात आपको समझ आई या नहीं। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आई, फिर भी बस चलो रट्टा लगा दो यार, कि जो मैंने एच डी की डायरेक्शन शो की है ना, मैंने अपने वर्चुअल भी उधर ही शो करना है। Okay, so you can just add another column. A column means table का column, यहां पर डेल्टा डी डी फाइंड करने के लिए you can just do this. So now you just focus on this part, okay. So now you would say minus x1 square by 2, I'm sorry, not by 2, by EI. I can write down the EI over here, or maybe I could say I'm actually finding delta dd, EI times delta dd, okay. Last time हमने पता नहीं एंड में कुछ लिखा या नहीं लिखा, but I hope you can do that, okay. So what next? From 0 to
h, okay, with respect to x1. और अगले में आप एक्सप्रेशन है माइनस एच स्क्वायर डी एक्स टू फ्रॉम 0 to L, and the third one is minus x1 square, minus x3 square dx3 from 0 to h. यहां से और यहां से एक जैसे आंसर्स निकलने, आप जो मर्जी कर लें. So a shortcut could be just have a 2 over here and get rid of this one if you like to use shortcut. Otherwise you want to take a long path, you can do that. उसको अलग से करें, उसको अलग से करें और बाद में देख लें आंसर्स आ जाएंगे सेम. ठीक है. So you can take this around and get your answer. Okay, I'll just write down the answer for you. I hope you can do the integration yourself. अब इसमें h वाली टर्म में h, इस वाले इधर से h की फॉर्म में आंसर निकलना है, इधर l की फॉर्म में निकलना है. दो टर्म्स इकट्ठी आपकी हो ही नहीं सकती. आंसर एंड में a प्लस बी यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड आंसर एक h की फॉर्म में एक l की फॉर्म में चलते रहना है. यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. तो उसको बस दो टर्म्स बन रही, दो टर्म्स छोड़ दे. बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं होती. सो यू कैन जस्ट सिंपली कंफर्म दिस आंसर कि ये आंसर यही बनता है 2h क्यूब ओवर 3ei प्लस h square l over ei2. This is the answer for delta dd. In fact, for delta dd, just for delta dd, this is the answer. Okay. ei आपको पता है, ये कभी कभी एक्सप्रेशन में मतलब भूल जाता है, लेकिन पता ही होता है कि ये है नीचे. Okay. So once you have this delta d naught, delta dd, you can just put them over here and get your answer for hd. So I'll just write down the expression over here. I'm writing down the final expression WL square by 12h into 1 over 1 plus 2 by 3 times RG over RC. Now let me tell you what this exactly means. RG is the symbol for I2 over L, and RC is the symbol for I1 over L. Okay? Alright, so we have just used a symbol over here. Now basically I over L जो है ना, किसी चीज किसी बीम या कॉलम की स्टिफनेस बताने के लिए हम I over L देखते हैं कि जिस बीम या कॉलम का यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर जो भी लेंथ है या हाइट, बीम के केस में लेंथ, हाइट, और कॉलम के केस में हाइट, जिस बीम का I over L ज्यादा है वो बीम स्टिफ है. इसका मतलब है शॉर्टर, रिलेटिवली शॉर्ट बीम है. शॉर्ट से मुराद है कि यानी I over L जो फाइनल आंसर निकल रहा है वो बड़ा कैसे निकले, I की वैल्यू बड़ी हो या L की वैल्यू छोटी हो. ठीक, I over L की बड़ी वैल्यू का मतलब है बीम स्टिफ है. ठीक है, स्टिफ होने का मतलब है सर्टेन लोड लगाएंगे, मसलन यूनिट लोड लगाएंगे तो कम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी. ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात. और G मैंने क्यों यूज किया? G फॉर गर्डर. बीम आपको पता है समटाइम्स यू यूज द वर्ड गर्डर. गर्डर is normally a larger beam. C for column. बुक में थोड़ी सी आपको एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन मिलेगी, उसको देखिएगा. उसने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट की हुई है. प्लीज गो एंड सी दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. वेरी हेल्पफुल जी. दिस इज बुक पेज नंबर 704 जहां पे डायग्राम प्लॉट हुई है. ठीक है, आई होप आई कैन शो इट ओवर हियर, मे बी यू कैन सी लेटर. ओके, 704, पेज नंबर 704, JJ Connors. 704. ओके, उस डिस्कशन को पढ़ के आइएगा कि
ताकि आपको जैसे बीम का मल्टी स्पैन बीम का आपको कुछ याद हो गया कि मल्टी स्पैन बीम की बीएमडी की शेप जनरली क्या होती है, कुछ भी कैलकुलेशन ना की हो तो आपको पता है कुछ ना कुछ लाइनें जो है ना वो आप लगा देंगे, ठीक है, वैल्यू ना भी हो। एंड दिस इज अ गुड थिंग टू आस्क इन, अगर आपने किसी को 2 मिनट में अभी चेक करना हो गया आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है, ठीक। और ये बड़ी काम की बात है जो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, क्वालिटेटिव बीएमडी इसको हम बोलते हैं। क्वालिटेटिव बीएमडी का मतलब है मुझे शेप पता है, बस ऑर्डिनेट्स कोई कैलकुलेशन चाहिए होती है, ठीक है। बाय द वे यू हैव डन द कैलकुलेशंस एज वेल। सिमिलरली यू मस्ट नो कि फ्रेम की बीएमडी की शक्ल क्या होती है अगर उस पर यूडीएल लग रहा हो ऊपर से, बस जस्ट ग्रेविटी लोडिंग वर्टिकल होती है ना, तो यू मस्ट नो कि फ्रेम बॉटम एंड पिंड है, ऊपर से यूडीएल है, तो उसकी जनरल शेप क्या होती है, और आपको कुछ यहाँ पे इस केस में वैल्यूज भी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अगेन यू विल सी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ WL²/12 और WL²/8, ठीक है, इसी फॉर्म में आपको आंसर्स मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों ने सेमिनार में तो नहीं जाना ना, ठीक है, खाना खाने जाना है।